So today I am here with a video for chemistry. So I'll be talking about periodic properties, which is periodic trends. तो इसका मतलब क्या होता है कि actually whichever property an atom has, okay, an element has, it varies accordingly in a periodic table. दैट इज़ वाई अ पीरियोडिक टेबल वॉज मेड, राइट. उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे तो उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक में हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स को डाल दिया, मतलब उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेटली वी कैन स्टडी देम एज अ ग्रुप, ओके, एंड स्टडिंग these एलिमेंट्स बिकम रियली easier. So that is why we started classifying elements in and placing them in a periodic table. तो periodic table में क्या होता है, there are various properties. So आज मैं कौन से properties discuss करने वाली हूँ. I am going to discuss atomic number, atomic size, screening effect, ionization energy and electropositivity. So let me tell you what is atomic number. Atomic number is basically the number of electrons or protons in a atom. Now number of protons in an atom is a more correct word because not in every atom number of protons will be equal to number of electrons. ठीक है, we know कि an atom कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कभी ले लेता है to form a compound. So that is why we can't say that the number of electrons will be a perfect way to determine the atomic number, but we can say the number of protons is the atomic number. So atomic number का concept तो बहुत basic है, I guess it is clear to all. And in a periodic table atomic number के हिसाब से हम लोगों ने एलिमेंट्स को प्लेस किया है, 1 2 3 4 ऐसा हम लोगों ने प्लेस किया है उसको. Next is atomic size. Atomic size is also very easy. We know that in an atom we have a nucleus and we have a surrounding orbit. So basically what is atomic size? वो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो रेडियस होगा ना वो डिटरमाइन करता है एटॉमिक साइज. इफ इट इज़ मोर देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेटर बिगर एटम, एंड वो छोटा रहेगा तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ smaller atom. Then we have screening effect. Now what is screening effect? क्या होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर this is a nucleus. I am drawing here a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स एंड बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ आई एम ड्राइंग वेरियस ऑर्बिट्स, ओके. लेट मी ड्रॉ इट इन द ब्लैंक स्पेस so that it is easier to understand. I am not going to draw a complete atom. I am drawing just a part of an atom. Suppose यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये ऑर्बिट्स है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. आई एम ड्राइंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो व्हाट हैपेंस, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे ऐसे. this is a force, okay, which this is by which this nucleus is pulling the electrons towards itself. तो actually क्या होता है ना कि this is called as the nuclear force of attraction because there is a positive charge in that the nucleus, वो बाहर के negative charge को attract कर रहा है. okay, now क्या होता है कि ये charge जो है, ये वाला charge, that charge, first charge which we can see here, okay, this is the first charge which we can see. This charge is attracted by the nucleus more than this charge. समझ रहा है, ये दूर है ना, तो ये न्यूक्लियर फोर्स का जो इफेक्ट है इधर तक आने तक कम हो जाता है. और क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से कि ये जो आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस वाले को प्रोटेक्ट करते हैं. सो वी कैन से दैट these are screening him from the nuclear force of attraction. ठीक है, it's like if the last benchers in a classroom are, मतलब लास्ट सामने वाले जो फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठते हैं उन पे टीचर का ध्यान ज़्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ लास्ट बेंचर्स कभी कभी छिप जाते हैं क्योंकि सामने वाले बहुत, मतलब सामने क्या ना, ऐसे कि सामने वाले होने की वजह से टीचर को पीछे वाले थोड़ा कम दिखते हैं. तो दिस इज द न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बचा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, मतलब
अगर let me go to the next property, and then we will try filling up this table which I have drawn there, and I'm sure that using this logic you will also be able to solve many MCQs which are asked in most of the entrance exams. However, there are a few exceptions also to these trends which you will have to learn. Okay, since it is inorganic chemistry, exception के बिना तो inorganic चलती नहीं है. So we can see. Then the next is ionization energy. Ionization energy क्या है ना, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक उसका ऑर्बिट है और ये एक दूसरा ऑर्बिट है. तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बाहर वाला और ये अंदर वाला, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको इस ऑर्बिट में से निकाल देना है ताकि ये जो है ये एक पॉजिटिव आयन बने. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो इफ आई रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म H प्लस, नो, एक प्लस चार्ज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एक माइनस कम हो गया. एक माइनस कम हो गया मतलब एक प्लस चार्ज ज़्यादा है ना. अभी पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज वॉज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अभी एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. कितने से बढ़ा? एक से बढ़ा. तो वी पुट इट एज H प्लस. ठीक है, तो अभी ये H प्लस मतलब क्या बना है, एक्चुअली इट इज़ अ कैटायन. ओके, वी कॉल इट अ कैटायन. व्हाट इज़ अ कैटायन? इट इज़ अ पॉजिटिव आयन. ठीक है, आयन क्या है? आयन है क्योंकि उसने एक आयन इज एन एटम जिसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है. ठीक है, सो आयन बन गया है ये क्योंकि इसका प्रोटॉन एक ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से. तो इट इज़ अ पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं. तो हम लोगों ने एक कैटायन बनाया. तो सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऐसे ही डिफाइन होती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन और टू फॉर्म अ कैटायन. ठीक है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी. एंड देन वी कम टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. ठीक है, मतलब अगर अभी मैंने हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, हाइड्रोजन से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसने मुझे दे दिया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि वो एक ही था हाइड्रोजन. बट अगर मैं ये सिमिलर चीज़ नियॉन या फिर आर्गन के साथ करने की कोशिश करूँ तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. यू नो वाई? बिकॉज इन दोनों के पास ना, ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल नोबल गैसेज हैं. नोबल गैसेज मतलब क्या? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, दे आर इन अ वेरी स्टेबल स्टेट राइट नाउ. तो अगर वो लोग स्टेबल है तो तुम लोग क्यों उंगली कर रहे हो? क्यों तुमको इलेक्ट्रॉन निकाल के उनको अनस्टेबल करना है? तो उनको वो अपना इलेक्ट्रॉन है ना इजीली जाने नहीं देंगे. तो तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. सो दैट इज़ वाई इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ना वो बहुत कम है. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम इज़ नॉट अ नोबल गैस. ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है. तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर उसने दे दिया ना तो ही विल बिकम वेरी स्टेबल. वो स्टेबल हो जाएगा. तो ही इज़ जस्ट वेटिंग कि कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले. तो एज सुन एज क्लोरीन माइनस आता है, एज सुन एज क्लोरीन आता है एंड क्लोरीन माइनस आता है एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट एन, जब क्लोरीन आता है ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बिकम क्लोरीन माइनस एंड दे कैन फॉर्म NaCl टुगेदर. सो दैट इज़ वाई Na का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा क्योंकि वो बोल देगा कि ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, आई वांट टू बिकम स्टेबल. सो दिस इज़ the concept of all these properties which I told you, and now I'm going to fill up the table there. Okay, this table is of very much importance. If you can solve this table it will be really of great help. तो क्या होता है ना, first of all let me tell you. ओके, पीरियोडिक टेबल को ऐसे याद रखो. तुम लोग जब इस तरफ जा रहे हो ना, मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. ठीक है, जब तुम लोग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हो तो साइज़ छोटा हो रहा है. ठीक है, साइज़ छोटा होता है, ये याद कर लो. क्यों होता है? क्योंकि ऑर्बिट नंबर सेम रहता है.
ठीक है, उसी ऑर्बिट में तुम इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो, तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा से ज़्यादा पुल कर रहा है उसको, और ज़्यादा पुल कर रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको उतना नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो वो पुल कर करके छोटा हो जाता है। दैट इज़ हाउ दिस साइज रिड्यूसेस हियर। बट नीचे जैसे तुम आते हो ना इन अ ग्रुप, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इन अ पीरियड एंड वर्टिकली इन अ ग्रुप, जब तुम लोग इन ग्रुप नीचे आते हो तब साइज इंक्रीजेस। नाउ व्हाई इट इंक्रीजेस? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, आई एम नॉट सेइंग नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऑर्बिट भी बढ़ रहा है। इसमें जैसे कि वी स्टार्ट विथ हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम। तो हाइड्रोजन में एक ही था, लिथियम में 2 आया, सोडियम में 3 आया। So you see why the size is increasing, because the number of orbits are increasing. This is how the size increases down the group. ठीक है, always remember this, across a period and down the group. So let us fill up this table. Across में क्या होगा? first property is atomic number. तो ऐसे करोगे तो atomic number क्या होगा? बढ़ेगा। तो my first answer is increases. Down the group क्या होगा? बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अक्रॉस अ पीरियड भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक साइज एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, तुम लोग ऐसे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? अक्रॉस में डिक्रीज होगा, डाउन में इंक्रीज होगा। फिर वी हैव स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने बताया था, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा। जितना तुम लोग क्लास में बच्चे ज़्यादा बिठाओगे उतना लास्ट बेंच वाला फ्री हो जाएगा, उतना दूर दूर तक टीचर को दिखेगा नहीं। तो वी कैन से कि जब साइज बढ़ रहा है तब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो साइज कहाँ बढ़ रहा है? डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ रहा है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस एंड अक्रॉस इट डिक्रीजेस। ठीक है, फिर वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी जब साइज डिक्रीज होगा तब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। एज यू नो, इधर लास्ट में कौन आता है? नोबल गैसेस आता है ना। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, सो वी कैन से कि उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द ग्रुप, आयनाइजेशन अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़ा हो गया ना। अभी वो न्यूक्लियस के पास में नहीं है, न्यूक्लियस के बहुत दूर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको न्यूक्लियस से ज़्यादा पुल नहीं महसूस हो रहा, तो वी कैन ईजिली रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, कौन नहीं देगा? देखो, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी देना पड़ रहा है, उसको बहुत एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। तो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। So this is the table. Try to fill it yourself also, and let me know if you have any doubts. Let me know in the comments your suggestions.